The topic is ratio and proportion. It's not a very tough topic, basically, a very easy one, and this is going to help us in a lot of other topics also. For example, you have a topic averages, so it's going to help us in averages, mixture and alligation, variation, speed, time and distance, time work, टेबुलर एंड ग्राफिकल डेटा. अगर डीआई हम लोग कर चुके हैं आई बिलीव, तो डीआई में रेशियो का बहुत बड़ा मेजर रोल था. यूज टू फाइंड आउट द रेशियोज. So this topic is a very important one. So please pay attention towards it. How do we now show ratio? For example, if I say the two terms A and B, if I say that is A is to B, for example, they said 1 is to 4. Now, what does this mean? It means there is a certain item which is having certain quantity, and we have divided into 1 plus 4, 5 parts. Let's say there are 5 pencils we have, or 5 pens we have. So 1 is to 4 if I write, that means जो एक बच्चा है A, let's say A, the other student is B, तो A को 1 pencil मिली है, B को 4 pencil मिली है. For every 5 pencils, A gonna get 1, B gonna get 4. It maybe you may have 100 pencils with you which you have to give to two students A and B. तो 100 अगर करना है तो 100 के 5 पार्ट्स बनाओगे, दैट इज 100 by 5 20. तो 1 पार्ट 20 मिलेंगी A को, and the rest 80 will be going to B. If I find out the ratio, again 20 का टेबल है 1 is to 4, ratio gonna be same. तो ratio never changes till the time there's an alteration only on one side or on the both the side in certain cases. So एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, that will be really helpful to understand. Let's say the first example we have. अब रेशियो में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे उन्होंने बोला एक्सपेंस ऑफ ₹240 टू बी शेयर्ड बिटवीन कार्तिक एंड रॉबिन इन रेशियो 7:5. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं दो अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करता हूं, लेट्स से मुझे पहले ही मालूम है कार्तिक के पास कितना है, रॉबिन के पास कितना है, बट अगर एक, let's say the ratio is 2:3 for both of them and they have ₹50 with them. In that case, I can just easily find out the two parts. Here we have 3 parts, total we have 5. That means one part is equal to 10. Karthik has 20 and Robin has 30. Total amount 50 बन जाता है. The same way, 240 rupees को शेयर करना है. कार्तिक और रॉबिन में 7:5, 7 plus 5 12. तो 12 divided by 240 divided by 12, that is 20. So 20 into 7 140 and 20 into 5 100. That is the answer I have. Simple. एक और करने का तरीका भी है जब वो दोनों का नहीं पूछ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द सेम, लेट्स से दे आर आस्किंग फॉर रोबिन. तो व्हाट अमाउंट डज रोबिन नीड टू पे? रोबिन नीड टू पे 5 out of every 12, 7 plus 5 of 240. This is another way to do this question. So 5 into 20, you'll get the 100 rupees once again. So do it anyway, the answer gonna be same. It depends which you are more comfortable with. तो आंसर 100 ही आना है, जैसे मर्जी कर लो आप. इन्होंने also they have shown so much alternative methods. I believe one should go for this one. This is the best way. सबसे कम टाइम लगता है. ये वाला जो मेथड है जिसमें हम डिवाइड बाय 20 कर रहे थे, सॉरी 7 plus 5 12 कर रहे थे, ये भी मेथड ठीक है, बट ये उसी का शॉर्टकट. अगर आपको याद हो, आप लोगों ने छोटी क्लास में किया होगा 7x और उसको 5x ले लो, फिर आप कहते थे 12x दैट इज इक्वल टू 240. दैट मीन्स x की वैल्यू 240 by 12, तो x की वैल्यू 20 आ गई. बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन को जो आप लोग पहले करते थे, वी आर जस्ट डूइंग इट लाइक दिस एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर्स. So either go by this method, that is also okay, or go by this method, that is also okay. I'm absolutely okay with any of these. If you are comfortable with any of these, answer should match. That is the only condition we have. The first example is clear, I believe. Quite simple, quite Yes. easy. They have just given the same thing in the board notation.
टू अंडरस्टैंड. अगर 3 लोग हों तब भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो. So that is what the benefit of using this part. Now कहता है certain amount is distributed among A, B, C, D. Ratio given 7:3:2:3. तो A, B, C, D को कुछ अमाउंट मिला, मुझे नहीं मालूम कितना अमाउंट मिला, बट वी नो रेशियो जो है 7:3:2:3 का है. A और C टुगेदर they get 360 rupees. Now A और C together मतलब 7 and 2 मतलब 9 parts. 9x लिख सकते हो. That is equal to 360. Now the question is what amount does B get? Now B के कितने पास है? 3 parts हैं. तो divide by 3 कर दो. 3 into 3 9 आ जाएगा. तो 3 on both the side करना पड़ेगा. So that is what the math says. Divide 3 on both the side. That means 120 rupees. That is the answer I have. Quite simple. समझने वाली चीज थी, कुछ था ही नहीं. मतलब कि हमने B का निकालना था, हमने 7:2 बता दिया कि 7 plus 2 बता दिया, दोनों का टोटल मिला के 360 बोल दिया. तो A और C मतलब 7x plus 2x ऐसे मान लो 9x हो गया. उस तरह देख लो जो हम पहले देखते थे. Just want to bring you guys on the competitive way to doing it, not the conventional method which you are doing from class 8-9. तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो 3 into 40 120 हो गया. Because you know B का वैल्यू 3x है, तो 3 into 40 that is 120. आप ऐसे भी कर सकते हो, not an issue about it. ठीक है, बट दिमाग में क्या चलना चाहिए? 7 plus 2 9, 9 का डिवाइड बाय 3 है, तो आंसर मेरा 360 by 3 120 आने वाला है. आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. Look at the number 3. Babu Rao divides his wealth among his 3 sons 8:3:1 ratio है, in decreasing order of their ages. If the eldest son gets 1,05,000 more than the youngest. Now उसने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है, ये मिडल में है. तो आपको बताना है सेकंड सन, मिडिल सन जो है उसके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच ही गोना गेट. नाउ क्वाइट सिंपल अगेन. उसने अब बताया डिफरेंस मोर है, तो 8 पार्ट और 1 पार्ट का डिफरेंस है 7 पार्ट्स का. दैट मींस 7 पार्ट्स दैट इज इक्वल टू 1,05,000. नाउ इफ यू कट इट अप, 7 into 1 7, then 35. That means 1 part is equal to 15,000. They are asking about the second son. That means 3 parts. 3 parts matlab multiplied by 3. The answer is 45k. 45,000. That is your answer. Easy. Let's go for the next one. Scaling ratio. Scaling ratio क्या होते हैं? We'll do it to the example. I'm not going to go through all these things. इससे आपका टाइम ही वेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बिना एग्जांपल के करवाऊंगा तो लगेगा थ्योरी रट्टाफिकेशन. हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर. बाकी आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah, the 300 marbles are divided among P, Q, R such that P is to Q 5:7, R is to Q 64:21. How many marble does each person get? अब देखो 3 लोग हैं लेकिन रेशियो 2-2 का दिया हुआ है. तो अगर मैं देखूं P is to Q, that is given to me 5:7 and then Q is to R. अब यहाँ पे R is to Q है, मतलब उल्टा है, तो मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा. Write it below that. That is 21:64. ठीक है. Now what you can do, you know, एक छोटा सा मेथड था छोटे होते, अगर हमें याद हो, we used to take an LCM of this. 7 और 21 का LCM we used to take, that is 21. तो हमें इसको भी 21 बनाना है. कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करके बनेगा. तो अगर मैं टॉप लाइन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, 3 into 7 21. तो 21 डिवाइड बाय 7 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 to 3 21, 3 into 5 15. This is the ratio what you get. This is answer. No, this is not the answer. This is the ratio. They said how many marbles. Now marbles आपको डिवाइड करने हैं, टोटल 300 है. Now this total comes out to be 100 सबका. तो 100 मतलब एक पार्ट 3 marbles. So 3 into 15 45, 3 into 21 63, 3 into 64 192. This is the answer. आंसर आपका नीचे वाला. वो तो रेशियो आया, अगर रेशियो पूछा तो वो था आंसर ये वाला. Is this clear? Yes, sir.
Now what I'm going to tell you Yes, is sir. understand that also. मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्केलिंग रेशियो में वो ध्यान से देखो. Now I had P, I had Q. ये तो बाय चांस की बात है 7 और 21 आ गया, लेकिन अगर ये 20 और 21 होता तो क्या करते? ऊपर वाले को 21 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 20 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. नो डाउट. तो हम इतना इसको कैसे करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. एलसीएम का एक है तो एलसीएम ही, बट एक छोटा सा तरीका है करने का इसको. अगर यहाँ पे 5:7 है, यहाँ पे 21:64 था, तो अगर मुझे इन सबका रेशियो निकालना है तो व्हाट आई डू मल्टीप्लाई लेफ्ट विद लेफ्ट. दैट मींस 5 into 21. ये P के लिए है. फॉर Q I'll multiply 7 into 21, and for R I'll multiply 7:64. Right to right. Now I'll see anything gets cancelled up. I'll just see to that कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है. into 3 करके सही आ जाता है. अगर बाय चांस ये 17 होता तो क्या करते? फिर उसको 21 से करते, इसको 17 से करते, है ना. तो आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्टकट टू डू इट. अब ये सब में कॉमन क्या? 7 7 7 into 3 21. अब क्या रेशियो आ रहा है? 5 into 3 51, 21 64. The same ratio you had, the same ratio you are getting. This is a ratio. Answer to the ratio if they ask. Understand once again. लेफ्ट को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट से, राइट को मल्टीप्लाई करो राइट से, एंड इसका राइट को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट से. You just have to go on and multiply these. Simple. जो भी लेफ्ट मोस्ट है just keep on multiply. हर एक लाइन को लेना जरूरी है. अभी 4 का भी आएगा, तब आप वो एलसीएम वाला मेथड करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. अभी करेंगे क्वेश्चन उसके भी आगे. Is this method clear? Yes, sir. Yes, sir. Let's go to the next question now. Example number 5. Priya, Sneha, Anagha earned rupees 36,400 between them through their coffee shop. They decided to divide this money among themselves such that 1/5 of Priya's share was equal to 1/6 of Sneha's share. So 1/5 of Priya, that means Priya ka 1/5. That is equal to 1/6 of Sneha, which in turn is equal to 1/2 of Anagha. They're saying they are equal. Now when there is equal ka sign, so if I take P as 5, S as 6, A as 2, तो मेरा वैल्यू क्या होगा? 5 into 1/5 1, 6 into 1/6 1, 2 into 1/2. And that means what I did, मैंने जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उसी नंबर को लिख लिया और इक्वल को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया. तो P, S और A का रेशियो आ गया कि इस अमाउंट में से 36,400 में से हाउ मच मनी दे हैव. कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है, जो न्यूमरेटर है that should be 1 before applying this. अगर नहीं है तो बनाओ. फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता तो ये 5/2 हो जाता है. इसको यहाँ से हटा देते हैं तो 5/2 हो जाता. उसको हटा दो, डिवाइड कर दो, सिंपल. ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हाँ करके देख लो. Now उसने पूछा what amount did Sneha get. Now Sneha got 6 divide by 5 6 11 2 13. क्योंकि एक ही बंदे का पूछा, यूज दिस मेथड बिकॉज आपको क्या जरूरत है इसको सारे को डिवाइड करने की. करना तो अभी भी वही है. 13 into 2 36 into 8 104, 2800 into 6, that is 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 into 8 48, 4 remainder 16,800. That is the answer I get. Example number 5. Is this also clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगर 2 होता है न्यूमरेटर में तो फिर 5/2 कैसे हो जाता है? क्योंकि देखो अगर आप उसका इन्वर्स करते, लेट्स से यहाँ पे 2 होता फॉर एग्जांपल, तो मैं डिवाइड बाय 2 करता न्यूमरेटर को इसलिए, और डिनोमिनेटर को भी करता, तभी तो इक्वल रहता. तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और यहाँ पर 5/2 बन जाता. जब यहाँ 5/2 आ जाता और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, फिर आप सारे को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते. आगे आएंगे क्वेश्चन से, डोंट वरी. फिर हम सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता 5:12:4. ये ऐसे बन जाता. ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे, विल डू इट, डोंट वरी. Look at the example number 6.
इट सेज 5 टाइम्स। अब देखो यहां पर था 1 बाय करके और यहां पे 5 टाइम्स। क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर करना। 5 times Anune's pocket money is 8 times of Shonak pocket money as well as 6 times of Sahil pocket money. टोटल पॉकेट मनी गिवन है अनन्य और शौनक, इनकी कंबाइन बतानी है। अब इसको 5 8 6 नहीं ले सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। इसको 5 ले लूंगा, 5 into 5 25, 8 into 8 64, इक्वल नहीं होता। तो व्हाट आई हैव टू टेक, आई टेक एलसीएम। किसका एलसीएम? 5 8 और 6 का। जो नंबर्स गिवन है आई टेक देयर एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा? I'll get sorry 5 into 8 40 40 120, I'll get 120 as an LCM. Now divide everything by 120, आप सेम इसी इक्वेशन में पहुंच जाओगे। A divide by 48, 5 by 120, ठीक है, सॉरी 24 not 48, 24, that is equal to Shonak by is 15 and that is SL divided by 20. दैट मींस इनका रेशियो क्या है? रेशियो है 24:15:20 बिकॉज न्यूमरेटर सबका 1 आ गया। यू गॉट द रेशियो हियर। यस अक्षत, रेज योर हैंड। यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज आस्क। सर ये 120 वाली फिगर कहाँ से आई थी? हाँ जी बेटा, ये 120 कहाँ से आया था? 120 बेटा एज आई सेड एलसीएम ऑफ 5 8 एंड 6, इन सबका एलसीएम था। राइट, ओके सर। उसी को डिवाइड किया, सो वी गॉट न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर वी गॉट द वैल्यू, सो डिनोमिनेटर मेरा रेशियो आ गया। अब अनन्य और शौनक का कंबाइंड कितना है? 24 and 15 39 डिवाइड बाय टोटल है 59 ऑफ 17700। now 59 into 3 is 177, that means 30 into 3 that is 39 into 3 gonna be कितना बनेगा? 0 0 3 into 9 27, 2 remainder 11, that's right, it was right. This is the answer I get. 11,700 rupees we will be giving it to Ananya and Shonak both. That is what the answer comes out to be. Are we clear on this? Nirmala? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Dhananjay? Dhananjay, are we clear on this? I think his mic problem है. He has logged out. He'll be logging in again. Now the next question which we have that says A is to B, that is 1 by 3 is to 1 by 5, and B is to C is 1 by 10 is to 1 by 12. Now what is the value of ABC? Now AB हो गया आपका 1 by 3 is to 1 by 5 and BC is 1 by 10 is to 1 by 12. Now अब आपको जब इनका रेशियो निकालना है, the same trick you want to use जो पहले आपको बताया। 1 by 3 into 1 by 10 is 1 by 30, 1 by 5 into 10 that is 1 by 50, and this is 1 by 60. Now convert it into integers, take LCM, that is 300, this is going to be 10, this is going to be 12 and this is going to be 5. Now this is the answer I have. ये मेरा रेशियो निकल के आ गया 10 12 5, सॉरी 10 6 5, 15 to 6 होता है। Is this clear to us? Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. अक्षत, आपकी बुक्स लेने किसने आना था? सर अर्शिका ने। ठीक है बेटा, तो दे दें आप बुक्स इनको, फिर चेक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दोनों कंप्लीट थी। Now look at the next question, the comparison of ratios that we have, how to compare the ratio. For example, we have 13 by 97 and 7 by 53. How will you compare? करना क्या, 53 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 97 को 7 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने क्लास 5 6 में सीखा हो। बहुत सिंपल तरीका, बस इतना ध्यान रखना डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 into 7 49, 4 रिमाइंडर 6 79,
13 into 3 9 39 3 remainder 6 it this is greater that means 13 by 97 is more. दूसरा तरीका क्या है एज दे हैव डन डेसिमल में कन्वर्ट कर लो बट डेसिमल में कन्वर्ट करोगे दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिवाइड वाला और थोड़ा टफ होता है आई बिलीव मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी है सो आई विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर इजी है. If I look at this 3 by 8 2 by 7 and 5 by 9 एक और प्रॉपर्टी सीखो. If I see the difference between numerator and denominator here is 5 यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 5 का है. 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है. Now what exactly happens जब भी डिफरेंस सेम होता है let's take 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 now which is greater जो नंबर बड़े हैं वो बड़े होंगे हमेशा. ये 50% है ये 66 ये 75 ये 80 दैट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2 by 7. पहली बात तो ये क्लियर होगी. अब इन दोनों में अगर क्लियर करो 9 into 2 18 7 to 5 35 यहाँ से 5 by 9 ग्रेटर है ज्यादा तो मेरी चेन बनी 3 by 8 ये वैसे कौन से वाला ये ग्रेटर आएगा सॉरी मैंने बोला ग्रेटर है ना. तो ये आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 हो गया 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया तो 35 ग्रेटर होता है ना. तो इन 2 by 7 दोनों छोटा है राइट. तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 by 7 इज लेस देन 3 by 8 एज वेल एज 5 by 9. अभी 3 by 8 और 5 by 9 में कौन ग्रेटर है 9 into 3 27 8 into 5 40 तो ये सबसे बड़ा यही है. तो सबसे बड़ा 5 by 9 उसके बाद 3 by 8 एंड उसके बाद सबसे छोटा भी है 2 by 7 दैट इज द आंसर वी गेट. इजी कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Great. Now then we have properties of ratio. Properties of ratios क्या कहती हैं? कहते हैं a ratio A is to be multiplied with itself. That means A square is to B square. इसको हम बोलते हैं duplicate. और A cube is to B cube को बोलते हैं triplicate. ऐसे square root of A is to square root of B that is subduplicate ratio and cube root of A is to cube root of B is called subtriplicate ratio. तो सब वर्ड लगा दिया जाता है duplicate और triplicate के सामने तो वो रूट पे चला जाता है. ऐसे ही B is to A is the reciprocal of A is to B. मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है just go through them. वैसे बहुत इजी है ना इसका ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि नॉर्मली आप जब क्वेश्चन करोगे तो लॉजिक एंड कॉमन सेंस तो आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए होती. सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन करो आराम से आंसर निकलते हैं. मतलब अगर मुझे पता है कि भाई अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी है. सेम नंबर डिवाइड करूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. सेम नंबर लेकिन मैं अगर ऐड कर दूं तो मैंने अभी बताया डिफरेंस तो सेम रहेगा तो जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा होगा. तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा कुछ माइनस कर दूंगा तो नंबर छोटा हो जाएगा. नाउ जैसे अगर a ग्रेटर देन b है मतलब a बाय b की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है. यहाँ a कब था जब न्यूमरेटर आपका छोटा होता है नॉर्मल जो सिनेरियो चलता है आपका. यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं मतलब a ग्रेटर देन b हो तब ये साइंस में क्या हो गया तब ये साइन उल्टे हो जाएंगे. कैसे लास्ट वाला कैसे कहते लेट्स से 2 by 1 3 by 2 4 by 3. अब क्या हो रहा है जो नंबर जितना छोटा है उतना बड़ा है. ये 2 है 200% ये 150% ये 133%. मतलब अगर आपका क्योंकि एक्चुअली तो फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा. न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो आपकी सारी प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है. ये हम एक्चुअली यहाँ से फ्रैक्शन का मतलब ये मानते हैं. ये होता है इम्प्रॉपर. ये हमने नंबर सिस्टम में किया होगा या करेंगे आगे चल के. तो अगर ऐसा होगा तो जहां पहले ग्रेटर था अब लेस हो जाएगा और जहां पहले लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा. ये भी क्वेश्चंस करेंगे तो इजी हो जाएगा आप लोग डोंट वरी. नाउ द सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ये चीजें बड़ी कॉमन सेंस की है. जब नंबर्स पे देखना ज्यादा इजी है ज्यादा समझ आता है. अल्फाबेट पे समझ इतना नहीं आता. रीजन बहुत सिंपल है बिकॉज मैथ्स जो है नंबर्स जो है वो मैथ्स वो हमारे माइंड को जल्दी रीड कर पाते हैं हम लोग. हम अल्फाबेट्स को जल्दी रीड नहीं करते हैं. तभी सीरीज का टॉपिक जब कराया जाता है पहले आपको नंबर्स कराए जाते हैं बाद में अल्फाबेट्स कराए जाते हैं. नाउ एग्जांपल नंबर जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो कहती है अगर a by b ग्रेटर देन c by d है इन दैट केस अगर मैं c को a में ऐड कर दूं d को b में ऐड कर दूं तो a by b तब भी बड़ा ही रहने वाला है. और अगर a by b लेस है
तो ऐड करने के बाद भी लेस ही रहेगा. दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी दे हैव. ऐड करने के बाद ज्यादा नहीं होगा. नहीं, क्योंकि अगर a by b, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू के 2/3 इज ग्रेटर देन लेट्स से 1/2. अब आप ऐड कर दो 2 + 1 3, 3/2 5. अब 2/3 जो मेरा a by b है वो अभी भी ग्रेटर है 3/5 से, क्योंकि ये 66% है, 60% है. 2/3 स्टिल ग्रेटर देन, अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं जो मेरा साइन ग्रेटर देन का आएगा. लेकिन अगर ये उल्टा कर दूं मैं, फॉर एग्जांपल आई टेक 1/2 और यहाँ ले लेता हूँ लेस देन 2/3, तो अभी क्या होगा 1 + 2 3, 3/5. अब ये 50% है, 60%, तो साइन मेरा अब a by b लेस था, तो साइन मेरा अभी भी लेस ही रहेगा. और इन दोनों को कंपेयर करें 1/2 को इससे, तो ये लेस देन साइन आएगा. यहाँ ये ग्रेटर है, 60% है, 50%. आर वी गेटिंग इट क्लियर अक्षत एंड निर्मला? Yes, sir. Yes, sir. Look at the next one now. Example number 10. The subtriplicate ratio, मतलब cube root of a fraction. This is given to you 3:5. डुप्लीकेट रेशियो बताओ. पहले तो x और y को लेकर आओ, क्यूब बोथ द साइड कर दो. जब इसको क्यूब करोगे तो आ जाएगा x is to y, दैट इज 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125. अब आपको निकालना है इसका डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर निकालना है आपको इसका. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर. तो 27 का स्क्वायर दैट इज 729 एंड 125 का स्क्वायर यू हैव 15625. 12 into 13 156. 5 का स्क्वायर 25. आई थिंक ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको. 5 के जब भी स्क्वायर होता है एंड में होता है तो यू कैन जस्ट इजीली डू इट. एग्जांपल नंबर 10 क्लियर? Yes, sir. ट्रिक ये थी बेटा, जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर क्या होगा? जब लास्ट में 5 स्क्वायर होता है तो उसको आप लास्ट में 25 लिखते हो, और जो ये नंबर होता है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपका 35 का स्क्वायर आ गया. ऐसे हमने 12 into 13 156 लिया, 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, रेशियो 2 और 4 है. Now sum of their squares, तो पहला नंबर है लेट्स से 2x, फिर है 4x, 2x, x और 4x. इन सब का स्क्वायर किया, you got 189. You got 21x square 189, तो x square की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, x आ जाएगा +-3. उसने बोला पॉजिटिव है तो माइनस को डिसरिगार्ड कर दो. 3 into 2 6, 3 and 12. पूछा गया सम बताओ. 3 and 4 7, 7 to 3 21. दैट इज द आंसर. वेरी इजी. कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है. Look at the next question. 3 friends Karan, Ashu, Uday, some amounts with them the ratio 3 5 10. कुछ अमाउंट है उनके पास. तो लेट्स से आशु के पास 3x है, सॉरी करण के पास 3x, आशु के पास 5x, उदय के पास 10x है. आशु एंड उदय ने क्या किया? आशु, उदय, करण है पहले वाला. आशु और उदय ने क्या किया? 4000 रुपए इसने जेब से बाहर निकाले, 2500 इसने निकाले और सारे करण को दे दिए. करण के पास मतलब +6500 हो गया. अब जो रेशियो है कर्ण और उदय का 4:5 है, मतलब ये रेशियो दैट मींस 3x by 6500, सॉरी +6500 डिवाइड बाय उदय का कितना है 10x - 2500. ये रेशियो गिवन है आपको 4/5. इसको सोल्व करना है आपने. तो 5 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन ले लोगे आप 2 and 5. नाउ डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. That means 3x plus 6500, that is 2x into 4 8x minus 500 into 4 2000. You got 5x, that is 4500. That is the answer हो गया, सॉरी 8500 प्लस हो जाएगा तो जाके. तो x की वैल्यू आ गई 1700. नाउ दे आस्क्ड आशु के पास कितना था पहले? 5x मतलब 8500. दैट इज द आंसर. आर वी क्लियर डील हियर? Yes, sir. हाँ जी, बिकॉज आशु का पूछा, Yes, अगर वो sir. करण का पूछता तो 3 से करते, उदय से पूछते 10 से करते. हाँ
हाँ 5x तो यहीं पर आ गया था वैसे हमारा, बाय चांस की बात, इत्तेफाक। Example number 13, a company had 85 employees with the men 7:5, तो 7 plus 5 12, 84 divided by 12 7, मतलब men 49 और 35 थे वुमेन। क्लियर है पॉइंट? बड़ा सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ज्वाइन करवाओ, तो 49 में x ऐड करवाओ, x मेन, और 35 वुमेन में भी x ऐड करवा दो। रेशियो ऑफ मेन अब बनता है 13/11। नाउ यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। You will get 42. How many women now joined? 42. That is the answer. खत्म। क्योंकि आपसे अगर पूछता टोटल कितने लोग ऐड हुए हैं, तो n plus x plus x मतलब 42 plus 42, फिर हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वुमेन पूछे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना फिर। राइट। जब उसने वुमेन तो उसने पूछा कितने ऐड हुए, हाउ मेनी वुमेन नाउ ज्वाइन। अभी वो ज्वाइन किया सिर्फ 42 पिछले ने। वाले से माइनस कर। पिछले वाले से क्यों माइनस करोगे? नए x साथ होगी वैल्यू आपकी 42, x से तो ऐड हुए थे बेटा, पिछले वाले से कुछ करना ही नहीं है आपको। यू ऐड ओनली x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन भी वही है कि कितने लोग नए ज्वाइन हुए, तो नए कितने ज्वाइन हुए, x लोग ज्वाइन हुए, x की वैल्यू क्या है 42 है। अगर वो पूछता अब कितने मिला के, प्लस ज्वाइन ना वर्ड होता, पूछता हाउ मेनी वुमेन नाउ आर नाउ देयर, पिछले 30 अब ऐड करते 30। राइट, वेरी गुड, शाबाश। 35 plus 42 77 आंसर। पूछता कि मैन वुमेन दोनों कितने ऐड हुए, तो 84 आंसर होता। मतलब डिपेंड करता है वैल्यू आने के बाद, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग। Look at the next one, 14. Lalit and Leela earn in the ratio 4:5. Let's say the earning is 4x 5x. Spending 18:23, तो अब ये xx नहीं ले सकता मैं, reason being because different ratio आ गया 18/23y। They both say 4000, मतलब 4x इनकम में से अगर मैं 18y एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, क्योंकि जो मेरी जेब में आया उसमें से मैंने एक्सपेंड कर दिया, स्पेंड किया अमाउंट, तो जो बचेगा वो सेविंग है। That means 4x minus 18/4000, 5x minus 23/4000 को सोल्व करेंगे, कहता आंसर। ये सोल्व तो करना आता ही, आई बिलीव एवरीबॉडी नोज हाउ टू सॉल्व इट। वी नो हाउ टू सॉल्व इट, अक्षत निर्मला। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 15। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट के कारण। फॉर एवरी लेग दैट अ मोंकी हैज, अ सेंटीपेड हैज 25 लेग्स। बड़ा सिंपल सा फंडा है। रेशियो इसका मतलब जो है वो 1:25 का है इनका आपस में। If entire room has 3000 centipede legs, so how many legs monkey have in the room? 3000, that is equal to 25. 3000 divided by 25, that is 1 2 0, मतलब 1 का मतलब 120, that is the answer। तब हो गया कुछ या 25x equal to 3000, x equal to this value, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी। ऐसे एक और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को। A city has 5 males for every 3 female, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 5:3, that they have given here। Now every fourth male is unemployed, तो मतलब ये मेल जो है every fourth male, तो अगर इसमें से employed और unemployed निकाले जाएं तो every fourth male is unemployed, मतलब employed है 3 और 1 है unemployed, while 3 out of 5 females are employed। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में से 3 out of 5 are employed, तो employed है 3 और unemployed है 2, क्योंकि टोटल 5 हो गया। अब कहते हैं अगर 3.3 लाख एम्प्लॉयड लोग हो, मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल टू 3.33 लाख, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स बताओ क्या होंगे। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन करने के लिए बड़ा इजी कर दिया। नंबर ऑफ मेल्स को 100 ले लो 5:3, और नंबर ऑफ फीमेल्स को 60 ले लो उस हिसाब से। तो ये 100 है, ये 60 है। 100 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करो, 425, मतलब ये 75 है और ये 25 है दूसरे वाला अनएम्प्लॉयड। ऐसे ये 60 है, 60 को 5 के रेशियो में डिवाइड करोगे, 60/5 12, तो ये 36 आ जाएगा। नाउ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, 111। ये कब है, जब मैंने टोटल मेल्स माने 100। तो अगर 100 मेल्स हैं तो 111 है, लेकिन मेरे पास नंबर 3.33 लाख है, मतलब मेरा यूनिटरी मेथड काम आएगा कि अगर 111 एम्प्लॉयड पीपल हैं तो टोटल मेल हैं 100। अगर 1 एम्प्लॉयड बंदा होगा तो 100/111, एंड दिस इज गिवन टू मी 3,33,000
3,33,000. So I'll multiply it by 3,33,000. 3.33 lakhs. This is into 0.03. That means this is equal to 3 lakhs. That is the answer. Look at the example till 16. If there's any doubt, let me know so I can explain that once again. Otherwise, move further to proportion. ये 3 से आपने कैसे निकाले? ये वाले जैसे 100 ये देखो ये 60 आपके आ गया। 60 थे, ये 3 + 2 5 हो गए, 60 को डिवाइड बाय 5 किया तो 1 पार्ट हो गया 12 के इक्वल 5, into 3 भी आया था मैंने। तो 12 × 3 36 हो गया। हाँ 36 आ गया तो मेरा। और यहाँ पे था ये हमने ठीक है। माने हुए थे 100। ठीक था मेरा। ठीक है, क्लियर है? तो 3 + 1 4 किया, 25 वैल्यू आ गई, 25 × 3 ये 75 आ गया। इनको ऐड जब आपने किया है दोनों को तो आपका 111 आया है। तो अगर ये 111 है तो टोटल मेल जो थे आपके वो 100 थे, क्योंकि उसने पूछा है आपसे मेल है। फीमेल पूछा तो आप यहाँ 6 लिख देते, टोटल पूछा तो आप यहाँ 16 लिख देते। लेट्स स्टार्ट द प्रोपोर्शन नाउ। प्रोपोर्शन क्या होता है? A is to B is to C is to D. Let's understand that very carefully. Proportion के अंदर it's a part of ratio only. The equality of two ratios is called proportion. जब आप कोई फोटो क्रॉप करते हो कॉर्नर से तो आप देखोगे सेम प्रोपोर्शन में होती है, if we just pull it right away in the right way. तो जैसे लिखा हुआ है the equality of ratio denoted by A is to B such that C is to D, मतलब ये इक्वल टू काइंड हो गया। such that का मतलब, तो इनको क्या बोलते हैं जब ये चारों प्रोपोर्शन में, तो बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। अगर ये तीन ही है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, और बीच वाले को मीन बोल देते हैं, सेंटर प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है। अब एक प्रॉपर्टी है इनकी कि जब भी आप चार नंबर्स को प्रोपोर्शन में ले रहे हो तो मतलब जो एक्सट्रीम्स हैं ए एंड डी, इनका मल्टीप्लिकेशन जो इंट्रीम्स हैं बी टू सी इनके इक्वल होगा। दैट मींस a into d equal to b into c, और I can say a by b equal to c by d, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। Let's have an example on that. A rectangular plot is 40 meter long and 75 meter wide. Another rectangular plot is proportional smaller with a length of 32. So a upon b, length upon breadth 40 by 75. Proportionally वर्ड यूज किया मतलब इक्वल, रेशियो सेम होगा। स्मॉलर विद द लेंथ ऑफ 32, पहले लेंथ लिखी है तो यहाँ पे लेंथ लिखो, विड्थ निकालनी है 8 into 4, 8 into 5, 5, 15, तो विड्थ हो गई 15 into 4, 60. That is the answer I'm going to get. Easy. एक और प्रॉपर्टी है आपकी, they say if a by b equal to c by d equal to e by f equal to g by h, तो सारे न्यूमरेटर ऐड कर दो, सारे डिनोमिनेटर ऐड कर दो, वो भी इसी के इक्वल आएंगे जो आप a by b के इक्वल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1 by 2 equal to 2 by 4 equal to 3 by 6. If I add now all the numerator 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, you can easily see ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2, ये भी 1 by 2 और ये भी 1 by 2। तो प्रॉपर्टी जो है that is quite easy to understand. Now again I think very simple topic this is, आगे बहुत सिंपल है। a की वैल्यू है 3 by 11 is to 5 by 9, b is x by 1 is to 27, a और b इक्वल हैं, तो what is the value of x? If I just try to solve this question, how will I go ahead with this? 3 by 11 divide by 5 by 9, that is equal to x divide by 1 by 27। तो इस 9 को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। Now this 3 will go at the top, so I can say 3 by 5 11 से मल्टीप्लाई होगा is equal to 3x।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/55। सिंपल कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स, बस ध्यान से करने वाली चीज है, कुछ भी नहीं। आर वी क्लियर? आर वी गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now it says what is the least number that should be subtracted from 18, 26, 32, 47. So the resulting number will be in proportion. Proportion मतलब 18 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पे साइड पे। प्रोपोर्शन कहने का मतलब हो गया कि इनके एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू इंट्रीम्स। तो 26 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस एक्स, सीधे इस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 47 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। यहां से इसको सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की कोशिश थी, बट एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गया, इनकी वैल्यू 2 आ गई। मतलब 2 नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू गेट 16 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 30। आप वेरिफिकेशन कर रहे हो इस समय। 16 into 5 8008, that is 720, 24 into 3 72, that means this is equal. Bingo, we got the right answer. The 2 should be subtracted from all of them. Clear? Sir. Let's Yes, go sir. further. अब जैसे मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर a b c, तो a by b should be equal to b by c। अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, that means AC that is equal to B square and B is equal to square root of AC. Now this B is second proportion, we also call it mean proportion. उसका फॉर्मूला है आपके पास B is equal to square root of AC और B square equal to AC. And then the geometric mean also right, absolutely right. Now let's see a question. Tina, Prachi and Radha have scored marks in ascending order such that their marks are in continued proportion. Tina, Prachi and Radha. प्राची के स्कोर 10 है, टीना और राधा का टुगेदर 29 है। तो मतलब विद दिस फॉर्मूला 10 का स्क्वायर 100 दैट इज इक्वल टू हीना प्लस राधा, सॉरी हीना इनटू राधा। और मुझे पता है हीना प्लस राधा 29 है। अब मल्टीप्लाई करके आए 100 into ए इंटू सी, क्वेश्चन के हिसाब से हीना राधा बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर ए इंटू सी, ए हीना है आर राधा है, तो हीना को एच ले लिया, राधा को आर ले लिया। So we get h into r is equal to 100. From here I know that h plus r 29 भी, अब कौन सा ऐसा पेयर है मल्टीप्लाई करके 100 बने और ऐड करके 29, मल्टीप्लाई करके 100 बट ऐड करके 29 नहीं बनता, मल्टीप्लाई करके 100 ऐड करके 29 नहीं बनता, मल्टीप्लाई करके 100 एंड ऐड करके 29, दैट मींस एक 4 एक 25 है। दैट मींस जो हीना है शी मस्ट हैव स्कोर्ड 4 मार्क्स and Prachi Radha must have scored 25 marks. That means this should be the answer. Is this point clear? Yes, sir. Yes, sir. Great. There are some more questions now which we have that are important for the next level exams. Let's just finish that also. Now a plus 2b plus c, a minus c and a minus 2b plus c are continued proportion में है, find the mean proportion. Now that means a minus c का whole square that is equal to a plus 2b plus c multiplied by a minus 2b plus c. If you just multiply it, solve it, you will get ac equal to b square. That means आपका abc mean proportion एक continued proportion बनेगा, और इसने पूछा आपसे a और c का क्या होगा, तो b आंसर निकल कर आएगा। मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस 2b प्लस सी इंटू a माइनस 2b प्लस सी, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया, a प्लस सी को एक साइड कर दिया, ताकि आपका फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला तैयार हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को ओपन किया, वाई स्क्वायर को ओपन किया, यहाँ से ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एट द एंड यू गॉट 4ac इक्वल टू 4b स्क्वायर एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, यू गॉट ac इक्वल टू b स्क्वायर। दैट इज अ प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी। तो इसका मतलब है ab से वो पूछ रहा है a और c का मीन प्रोपोर्शन, तो वो b ही है, क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Some more properties before we end. Now if they say a by b equal to c by d है, तो अगर मैं इसको c को, जैसे अब यहाँ पर a by b that is equal to c by d है,
तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, a by c इक्वल टू b by d लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटो लॉ, मतलब ये कुछ लॉस गिवन है जो आप नॉर्मली जानते ही हो, बस टर्मिनोलॉजी दे दी इन्होंने आपको। इसको अगर आप इन्वर्ट्स कर दो, उल्टा लिख दो, b by a इक्वल टू d by c, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। एक होता है कॉम्पोनेंटो, मतलब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो गलत नहीं होगा ना, कभी गलत नहीं होगा। a प्लस बी बाई बी दैट इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी, ये कॉम्पोनेंटो लॉ है, यहाँ लिखा हुआ नीचे, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी डिविडेंडल लॉ है, ये काम आ जाते हैं कई बार। ऐसे ही a माइनस बी बाई a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, कॉम्पोनेंट डिविडेंडल लॉ। ऐसे करने नाम तो नहीं दिया होता कि इस मेथड से वैसे आज तक आया नहीं आप लोगों को, सीए के एग्जाम्स में तो आता है, बट आप लोगों के एप्टीट्यूड के एग्जाम में नाम नहीं आते, इनका प्रैक्टिकल भी कमी आता है, बट पता होना चाहिए। अगर आ जाए तो कई बार आपको हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट लेवल के एग्जाम जो आईपीएम वगैरह है, उसमें एक चीजें पता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं आपको शॉर्टकट्स निकालने पड़ते हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में एप्टीट्यूड के आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन में उसमें जरूरत नहीं पड़ती मेन तो वही वाला फर्स्ट फॉर्मूला है ना, नहीं, उसी से डिराइव्ड है सारे के सारे। उसी से ये अभी हम करके आए हैं पीछे प्रॉपर्टी की, सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। Look at the example number 22. I think the last example this is. इसको देखो छोटा सा। अब देखो 22 एग्जांपल में उन्होंने प्रॉपर्टी यूज करके ना बड़ा सिंपल कर दिया। दे हैव यूज्ड कंपोनेंट और डिविडेंडो, मतलब इस पूरी इक्वेशन में से, न्यूमरेटर में से उन्होंने पूरा डिनोमिनेटर माइनस किया पहले और फिर ऐड किया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपकी जो ये वाली टर्म्स हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। अच्छा, ऊपर पहले इन्होंने प्लस किया हुआ है, डिविडेंडो कंपोनेंटो पहले यूज किया हुआ है। तो जब आप पहले इनको प्लस करोगे तो यहाँ पे ये कट जाएंगे आपके, तो ये को ट्वाइस ऑफ 7x प्लस 5 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 25 प्लस 24। डिनोमिनेटर में क्या होगा, दिस माइनस दिस। जब आप माइनस करोगे तो 25 माइनस 24 हो जाएगा, तो वो तो 1 आ जाएगा। और यहां से जब इसको माइनस करोगे, ये माइनस और ये प्लस का साइन, फिर आपका जो ये वाला पार्ट है ये वाला कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 7x माइनस, अब इससे ये कट जाएगा, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब यहां से इजी हो गया, स्क्वायर रूट इधर लेके जाओगे, सो दिस विल बी प्लस माइनस 7। तो एक बार इसको प्लस 7/1 के इक्वल रखोगे, एक बार माइनस 7/1 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, खत्म, कुछ भी नहीं है। The same way, the last example which we have, kx by y plus z plus x is equal to ky plus z plus, मतलब देखने में बड़ा इजी, मतलब लगता है क्या क्वेश्चन है कुछ नहीं। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, सारे न्यूमरेटर ऐड कर दो, kx plus ky plus kz, मतलब k कॉमन, बाकी सबका आ गया x plus y plus z, डिवाइड बाय सबके डिनोमिनेटर ऐड कर दो, सब 3 बार है,